एंड बहुत बहुत धन्यवाद सब फैकल्टी मेंबर्स को, हमारे एचओडी सर डॉक्टर कपिला खेमुंडू, हमारे सह कलीग्स डॉक्टर सौभाग्य लक्ष्मी सिंह एंड डॉक्टर मानस मलिक जो यहाँ पर हैं. सो मेनी थैंक यू सो मच. Slowly, language cut fashion in the ocean of reality. Now, I am giving you a good example of the sky. Do you think that any is different? You have different sky. Through words, you can make different sky. But the sky is a big reality. You can say it's a romantic sky. You can say Pakistani sky. You can say today the sky is saying something. So in different words, different perspectives, different narratives, you can make different spectacles. Getting my point? So that is your power. That is your knowledge. That is your language. So language cut fashion in those activities. So that is why you have a power. When you are getting knowledge, you are getting basically languages. Okay. So language makes number of reality right from the. That is why we have a language. Noam Chomsky. You may heard the name of Noam Chomsky. Although he is a professor of mathematics in MIT, Massachusetts Institute of Technology, but then he is also known as a big political scientist, and he has first time in the US-Vietnam War, so he opposed US policy. But there is a big knowledgeable person. He has a great syntactic structure, many things. You say language acquisition device, that is a something virtual device. That is, you never start learning your grammar of your mother tongue. Any one of you? But then you are very perfect. Suppose a American used to come to this place and start learning the Oriya. He first go for the learning of that grammar. तो इसलिए क्या है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दैट यू गेट इट राइट फ्रॉम योर बर्थ. ओके, सो दिस इज कॉल्ड नॉलेज. सो इसीलिए मैंने बोला कि नॉलेज प्रोसेस, गेनिंग नॉलेज और लर्निंग नॉलेज एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस. Dipti madam rightly said that she has prepared a lot for UPSC examinations and that given a lot of things. It was a departure point. Although she became the professor, but then because of the learning of the holistic knowledge, the full reality, she transferred all knowledge into the reality. Okay, you don't know. See, India is very famous for chance and choice. अभी आप बोल रहे हैं ना हम सिविल सर्विस नहीं बनेंगे, हम नहीं कुछ करेंगे. नेक्स्ट टाइम, अरे मेरा तो फ्रेंड IAS हो गया ना, मैं भी IAS बन के दिखाऊं. Suddenly you become. ठीक है? I have many number of cases. In the last 25 years, I have seen number of cases. No, हम तो IAS नहीं बनेंगे, IPS नहीं बनेंगे, बहुत झंझट करता. इधर से फोन, उधर से फोन, no, तो IAS बनेंगे. अरे someday एक आदमी बन के IPS बैठा हुआ, is now the DIG of that police. It is पूरा चेंज कर लिया. तो that is. अभी आपको पता नहीं है कि चांस होगा कि चॉइस होगा. आप लोग जो भी लेक्चरर हैं, जो भी हैं, तो यू हैव एक्सपीरियंस द थिंग. इंडिया इज ए बिग कंट्री वेयर यू हैव चांस और चॉइस. यू डोंट नो. आप पढ़ने चले थे, कुछ पढ़ लिया, कुछ हो गया, कुछ ठीक है. आप में से किसी को पता नहीं था कि आप यहाँ जाएंगे, और आप ये भी पता है कि आप कल कहाँ जाएंगे. ठीक है. सर तो हमारे विश्वविद्यालय से हैं, ठीक है. हम लोग सब साथ हम लोग, मैं सबसे थोड़ा सीनियर, लेकिन जेएनयू में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. जेएनयू में कभी कोई चिंता नहीं करता कहाँ जाना है. तो कोई नौकरी की चिंता करता है, कोई जर्नलिस्ट हो जाता है, कोई नेता हो जाता है, कोई आंदोलन मूवमेंट करने लग जाता है. ठीक है ना. और सर ने जिनके अंदर में PhD किया, वो तो इज ए रिनॉन्ड पर्सनैलिटी, ग्रेट प्रोफेसर. पूरा दुनिया, शिकागो से मैंने PhD किया, ठीक है, और इलिनॉइस से, वहाँ से उन्होंने PhD किया, और फिर आके नेता बने दिल्ली में, MP इलेक्शन फाइट कर लिया. तो आपका जो ये सोशियोलॉजी आपको एक ऐसा फलक देता है, आपको इतना सारा आपको डायनामिक्स देता है that you can go anywhere
and just tip in that field and you get through. That is the power of sociology. Okay, ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कम समय है, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड बात बताऊंगा. So we have two words. One word is knowing sociology and the second word is scoring sociology. ठीक है. Now जो IAS में टॉप करता है, if we practically see the marks of that student, aspirants, you see 58% of mark, 59%, around 60%. But if you go to the university and colleges, you have 70%, 80%, 90%. So percentage of marks, we have nothing to do with the percentage of marks. You may be the champion of Marxism, but then we have to write Marxism in only 250 words. गागर में सागर. आपको पैराडाइम लिखते हुए और जब तक मेथोडोलॉजी लिखते हुए 250 वर्ड्स हो गए. But we have to finish Marx in 250 words. We have to finish Parsons in 250 words. उसी के अंदर में AGI मेथड भी देना है, उसका पैराडाइम भी देना है, ठीक है. तो वो सब कुछ देना हमको. फंक्शनलिस्ट अप्रोच भी देना है, उसका सिंथेटिक अप्रोच भी देना है. तो that is the mastery, and it's a very popular subject because such a mightier subject, because score का only 2 or 3 marks that become a big thing. कोई बोलता है कि तुम्हें तो फेल हो गया because of 1 marks. That is true. Only 1 marks or 0.25 marks, that makes the differences of 70 ranks. आप IAS से बन गए लाइक सर्विस, एक नंबर अधिक होने से आप IAS ज्वाइन कर लेते. So that is the mastery, that is the big challenges in civil service examination. And the second thing, civil service examination is one of the simplest examination. Even bank clerk examination is toughest. ठीक है, लेकिन civil service examination, if you go properly, you will get it. That is the beauty of civil service examination. With good words, with good techniques, और जो पूछ रहा है exact to the point, right to the point. कभी कभी क्या होता है, we have some students, वो क्वेश्चन के आंसर जब भी लिखते हैं वो पहले उसका बैक में जाता है. ये बीमारी है, ठीक है. टीचर्स जब इवैल्यूएट करते हैं क्वेश्चंस को तो वो देखते हैं वो बैक में जाता है, पूरा पुराना से लेकर आएंगे, सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर आएंगे. नो, टू द पॉइंट, एंड यू हैव टू फिनिश इन 250 words, 100 words. Now today is a very easy. If you see the civil service sociology examinations paper, earlier it was very tough because you have to answer in 800 words, 1000 words. Now maximum you have to write 250 words, and most of the questions are 150 words. That is easy. Now with the very good, and but then the important thing was you need to have an interdisciplinary approach. Why JNU the JNU? You know what is the beauty of JNU? Still, after many good names or bad names, JNU the JNU. Okay. Why? That is the beauty of JNU learning system is what? We have 16 courses in PG courses. 16 credit courses in MA. Right? And out of 16 courses, only you have to go for 12 credit courses in PG. Sir is listening and sir is perfect. Keep up. चलेगा. ठीक है. So that is only 12 credit course you need to draw from your master course, PG course, originally from sociology or history, whatever your course. Now for rest 4 credit course, you go any of the department. Suppose Romila Thapar was very known for history, you go and get a course of Romila Thapar. Okay, history student can go to the Devendra Singh courses, T.L. Sharma courses.
So that is the interdisciplinary approach, and then you get it your everything from history department, sociology department, geography department, from the most top teachers of the country. And that is why number of that results year by year that is coming from JNU. That is the that is the basically the the basic heights of JNU results. Interdisciplinary. So you need to become interdisciplinary. ठीक है, you have become the student of sociology, but then who stops you to read history? And without history, how can you make a practical, positive sociology? And as you know that the sociology is the what? Queen of all sciences. ठीक है ना, आप बस फोन पे तो यही बोलते बोलते चले गए, ठीक है, कि सोशियोलॉजी में सब कुछ है। तो सोशियोलॉजी तो सब कुछ है, जनरल कोर्स, जनरल साइंस। इसीलिए आपको हिस्ट्री भी जानना है, ज्योग्राफी भी जानना है, कंटेम्पररी फिलोसफी भी जानना है। सो इफ यू सी द सोशियोलॉजी सिलेबस ऑफ द यूपीएससी, दैट इज मिक्स मसाला, रिलीजन एंड सोसाइटी, इकोनॉमिक एंड वर्क, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई सोशियोलॉजी इज वेरी स्कोरिंग एंड वेरी वन ऑफ द टॉप मोस्ट दैट इज सब्जेक्ट इन मेंस एग्जामिनेशन। अगर अभी आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स ऑफ दैट मेंस एक्सपीरियंस का, तो नंबर 1 पे इज दैट इज PSI। नंबर PSIR means political science international relations, and just after that sociology, anthropology, sociology, anthropology. And you know what is the difference between sociology and anthropology? Even you can easily handle anthropology, ठीक है ना, उसमें कोई बहुत प्रॉब्लम तो है नहीं। तो सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी दोनों चलता है। और सोशियोलॉजी स्टूडेंट्स का क्या है कि वंस इज रीचेस टू द इंटरव्यू में वो कभी रिजेक्ट नहीं होते। व्हाई? बिकॉज सपोज यू बिकम IAS ऑफिसर, सो यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस थर्मोडायनेमिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी देयर। Like the very backward districts of Orissa, you become IAS officer, ADM, SDM or what? आप क्या करोगे? So you are not going to make a scientific exploration there. No. You go to the people, know their religions, know their aspirations, ठीक है, know their complexity of life, and try to find out the ways. That is why sociology is one of the best, and even the evaluators, even the selectors, they wanted to always have the sociology students as a civil servant. समझ रहे हैं? ठीक है? तो that is one of the best point. And the second best point क्या है इसका? कि sociology में it is connected to our life. I told you now that only 2 marks make a big difference. Suppose if compared to geography. And something which is never that is expected but then suddenly appeared during examination, the topic, like topic related to tsunami, something scientific term, topic related to tsunami, and something that is related to, in sociology, something related to divorce, ठीक है, which you never read before. So tell me that in 150 words, even without knowing the divorce, without knowing anything, you don't think you are able to write at least 5 or 6 sentences over divorce? Out of 10 marks, you can get 1 or 2 marks. But in mathematics, physics, geography, you get 0. Getting my point? So that is the beauty of the things. That is why it's a scoring. And then the overlapping of syllabus. Whatever the syllabus that is in the general sociology paper 1, in sociology paper 2, the same thing, same topic. ठीक है? When we are talking about the stratification in first paper, तो caste media is what?
Caste in India is what? Caste in India is the good example of stratification. When we will talk social classes, the agrarian class, tribal class is what? That is a good Caste example. system. So it is a crisscross phenomenon. So get the perspectives, methodology, everything in the first paper and try to masterize it in the second paper. See, labor class, okay, and the see, Marxism in India is a big question. Because Marxism, the perspective Marxism need class, but India is the country of caste. ठीक है, तो आप रेल की पटरी पे हवाई जहाज कैसे दौड़ाओगे? Is it possible? आप देखिए कि स्टूडेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूपीएससी नाउ, ठीक है ना, ये जो आप जनरल पढ़ रहे हो बस इसी में बात कर रहे हैं। तो मार्क्सिज्म तो वही पॉपुलर, वही फिट होगा ना जहाँ पे क्लासेस होगा। और इंडिया में आप बोलते हो, इंडिया में भी है टू पार्टीज, सीपीआई एंड सीपीएम। आप बोले फुल फॉर्म क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड सीपीआईएम मींस ओके, दे ऑल टॉक अबाउट दैट एलिटेरियन क्लास, सब लोग बराबर, सब लोग ठीक। Then you have a Samajwadi party in UP. What is the difference between Samajwadi party and CPI? Samajwadi party is also talking about the agrarian class. कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, होता है ना बात? भाई ये तो बीजेपी जो है that is for the forward caste and follower caste and baniya caste. Now Samajwadi is for all. So what is the difference between Samajwadi party, Mulayam Singh, Samajwadi, and then CPI? बताइए डिफरेंस। both are extinct from India. Both are extinct from India. ठीक है, but both are reality. You cannot ignore CPI, CPM. Still we have number of CPI, CPM related good cadres across the country. है कि नहीं? है? और समाजवादी पार्टी is a big reality. ठीक है? But there's a big difference. Both are talking about the equality. But then Samajwadi party that believes very much in the caste, ठीक है, and CPIM they are very much believing in what? In class. इसलिए कम्युनिस्ट वाला क्लास मॉडल को बोलता है ये वाला, इसलिए मार्क्सिज्म इज वेरी, इट वाज वेरी पॉपुलर। वेयर, कहाँ पे था वो? मार्क्सिज्म कहाँ पे पॉपुलर था? बंगाल में, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा में। और क्या है कि कैसे हम मार्क्स को इंडिया में ले आते हैं? सेकंड पेपर में क्रिस क्रॉस। आप फर्स्ट पेपर से यू गेट द होल पर्सपेक्टिव एंड सेकंड पेपर में यूज द होल पर्सपेक्टिव विद गुड एग्जांपल। समझ रहे आप? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो जितने भी हमारे जो एग्रीगेट क्लासेस हैं वो क्या है? बेसिकली मार्जिनल लेबर्स जो है, मार्जिनल जो हमारे फार्मर्स हैं, तो उनके पास में कोई जमीन नहीं है, दे डोंट हैव द गुड नंबर ऑफ गुड साइजेस ऑफ लैंड। और जो भी हमारे पास में कैपिटलिस्ट जो हमारे फार्मर्स हैं या जो हमारे जिसको बोलते हैं ना मालिक किसान मजदूर, डेनियल थॉर्नर कहता है मालिक किसान मजदूर, तो मालिक का क्लास इज व्हाट? बेसिकली द अपर कास्ट। सो व्हेन यू हैव अ फाइट बिटवीन मालिक एंड मजदूर, इट इज आल्सो फाइट बिटवीन बुर्जुआ एंड प्रोलेटारिएट। तो आप सेम थिंग। मार्क्स का क्या गारंटी है? आप तो सारे लोग यू आर गुड स्कॉलर्स, हम लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि मार्क्स वही फील्ड होगा जहां पे दो चीज होगा। एक चीज वहां पैसा होगा, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, हाँ, तो अगर वहां पर रुपया है, जैसे कि विमेंस मूवमेंट, अगर विमेंस मूवमेंट बोलता है कि मुझे स्टीम चाहिए, इज्जत चाहिए, ये सब तो मार्क्सिज्म नहीं। लेकिन अगर फेमिनिज्म में अगर पैसा की बात होती है, राइट टू प्रॉपर्टी, तो क्या बन जाएगा? मार्क्सिज्म। अदरवाइज में मार्क्सिज्म नहीं है। विमेंस मूवमेंट में भी है जेंडर इश्यूज फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की बात आज कर रहे हो, दैट इज वो मार्क्सिज्म की बात है। लेकिन सोशल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, क्योंकि तो हम अपनी माँ की सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, हमारी जन्म भी हमारी माँ देती है।
आदमी को सबसे गुस्सा तब आता है जब उसकी माँ के बारे में कुछ बोलता है, ठीक है। तो माँ की जो माँ, इसलिए वो माँ मार्क्सिज्म नहीं है। मार्क्सिज्म तभी होगा जब पैसा आ जाएगा, जब लैंड आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि आप ये जो क्वेश्चन जो जनरल सोशियोलॉजी पेपर 1 पेपर 2, इट इज अ मिक्स ऑफ, and if you see very properly, it is overlapping, and you will have only 60% of syllabus. Only 60% of syllabus. The same thing you can carry from first to second. और first paper में when you are writing marks, you are writing Parsons, Durkheim, तो you must input examples. अब example कहाँ से लाओगे? अब चिली से तो लाओगे, बल्गेरिया से। तो better to put the good examples from what? Indian states, Indian communities. तो put that example from Indian communities. समझ रहे हो बात? तो that is very very important कि आप इधर से इधर करो, इधर से इधर करो. And if you see properly the papers of GS paper 1, which is very important in, now we have in mains examination we have 4 papers, 250 marks. I have given all handouts to Madam, and you have the handouts in WhatsApp group and all. If you see the properly the dynamics of marks, in the 250 marks general studies paper 1, 16 marks from Indian society and social problem. And the same thing that is very much in the GA sociology paper 2 syllabus. Poverty in India, gender issues in India, social movements, population dynamics. That is today we are talking about the demographic dividend. Okay, so perspectives has been changed. It was earlier a problem, now it has become what? Dividend. अब वो अच्छा हो गया। तो ये सब चीज, जो चीज आपको इस सिलेबस में वही चीज आपका। तो suppose you need a energy and you need a proper planning, you need a proper hours to prepare. तो सारा पेपर्स अगर आप कोई ऐसे सब्जेक्ट को लेते हो जो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, आप ऐसे सब्जेक्ट को लेते हो जिसमें आप कट शॉर्ट करके क्या कर लो, जीएस में लगा लो, ठीक है। जीएस हमने एक एक करके एक पॉइंट करके दे दिया है कि फ्रॉम वेयर यू गेट इट बेनिफिटेड फ्रॉम सोशियोलॉजी पेपर, GS1, GS2, GS3, GS4. सी द पॉइंट्स एंड एंजॉय द पॉइंट्स, ठीक है। आप बस प्रिपेयर, क्योंकि यू मस्ट बी फिट, ठीक है, थॉरली, यू मस्ट बी एनर्जेटिक थॉरली, और ये तभी होगा, you don't have to read 18 hours. Effectively 4, 5, 6 hours that is enough. और इसके लिए भी वेट नहीं करना है कि that is when I finish my PhD and MPhil and then I become lecturer and then I, ऐसे नहीं करना। लूप लाइन्स में नहीं, पैरेलल लाइन्स मेंटेन करना है, कभी कुछ हो कुछ आता है। And knowledge is knowledge, यही तो पूछेगा आपको, उसमें क्या है, तो रॉकेट साइंस थोड़ी है, ठीक है। और एग्जामिनेशन जो है ना, दैट इज ए बिग ड्रिल। एग्जामिनेशंस का जो साइकोलॉजी है ना, दैट राइटिंग मॉक इज वेरी इजी, बट व्हेन यू रीच टू द सेंटर एंड स्टार्ट राइटिंग रियलिस्टिक एग्जाम, इट गिव्स यू अ बिग बूस्ट। या तो आप बोलोगे इट्स वेरी गुड, या तो बोलोगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है, या तो यू बी प्रिपेयर फॉर बेटर टुमारो। तो वो आप कुछ ना कुछ तो करोगे, स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो दैट इज व्हाई सोशियोलॉजी एज ए सिलेबस, इफ यू रीड इट प्रॉपर्ली, इट इज ओनली 60%. एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज वेरी मच कनेक्टेड विद द जीएस पेपर्स. एंड थर्ड थिंग दैट ऑलरेडी आई टोल्ड यू, you reach to the interview, they will ask you the problem of caste, they will ask you problem of rights, they will ask you the problems of gender, they will ask you the problems of Naxalites, and that you better know with the help of sociology syllabus. And that is the reality, and that is a big challenges to the bureaucrats. क्योंकि bureaucrats करता क्या है? Social distance formula. If you go in the very basic sociology in BA or MA, you have social distance measuring. But we have questions that sociology के पास में कोई scaling है क्या? If sociology is science, do you have a scale? Yes, we have a scale. अरे जब medicine के पास में कोई scale नहीं है,
तो एक ही डॉक्टर एक पेशेंट को किया, फेल हो गया, एक को किया, पास हो गया, एक मर गया, एक हो गया। जब उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मेडिसिन इज साइंटिफिक सब्जेक्ट, व्हाई नॉट सोशियोलॉजी? ठीक है, स्केलिंग का जो मेजर है, जो स्केलिंग का टूल है, दैट इज डिफरेंट। But we have differently, we have Lukat's scale, Bogatis scale. तो एक कलेक्टर अगर सोशल डिस्टेंस के स्केल को जानेगा तो कास्ट रॉयट को खत्म कर सकता है कि नहीं? टेल मी, हरियाणा के अंदर में 300 लोअर कास्ट के मकान को कुछ वहां के जो लोग थे उन्होंने टॉर्च कर दिया, जला दिया। अगर कलेक्टर अगर उसको सोशियोलॉजी का होता तो सोशल डिस्टेंस, उसका सोशल डिस्टेंस देख लेता पहले कि सोशल डिस्टेंस फ्रॉम प्लेइंग एट ए वेरी द एक्सटेंट लेवल to need to carry the CRPF and all, even rehabilitate them from here to their better place. वो पुलिस का इंतजार नहीं करता, सर आग लग गया, आग लगने के बाद आप क्या करो? ठीक है, तो दुनिया में जितने भी हमारे साइंसेस हैं, अब ज्योग्राफी में यू कैन सी द फिजिकल फॉर्म, बट देन सोशियोलॉजी में आप फिजिकल फॉर्म क्या देखोगे? तो सोशियोलॉजी, द स्टूडेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी, दे आर इवन ब्राइटर देन, स्किलर देन, ठीक है, एंड इवन द मोर इंटेलेक्चुअल देन एनीबॉडी एल्स। टाइम इज सो लिमिटेड, बिग रिस्ट्रिक्शंस, and every time you have to change your mindset to write something. ठीक है, एक क्वेश्चन हिस्ट्री, एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, एक सोशल पैरिटी, कैसे करोगे? तो you must be measurable enough कि what is your energy. See, पांचों उंगली तो बराबर नहीं है, you all have different types of energy. ठीक है, different type of likings. कभी कभी क्या होता है, what is group, why group study or group things is better? When you stuck to some point, आपका फ्रेंड आके बोला इसको ऐसे क्यों कर रहे हो? टेक इट अदरवाइज राउंड ना, ठीक है, डोंट स्टिक टू द प्रॉब्लम, टेक इट अदरवाइज राउंड, ऐसे करके देखो ना, सडनली यू गेट सक्सेस। So that is, you all have different kind of mindset, different kinds of hiding energy that you don't know. हम लोग बोलते हैं हनुमान जी को पता नहीं था कि उनका कितना पावर है, फिर हनुमान जी को पता चला मेरे को पावर है, सीता जी ने बोला जाकर पूरा लंका को जला दिया। आपको क्या पता है? आप जगरनॉट है कि क्या है कि क्या है? आपका इंजन में इतना ताकत है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, पूरा दुनिया को हिला देंगे, लेकिन कोई आपको हिलाने वाला चाहिए, ठीक है। माँ बच्चा को सुबह जगाती है, बेटा उठो उठो, पढ़ो पढ़ो, तो बेटा फिर सो जाता है, फिर माँ बोलती बेटा उठो उठो, टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है। तो माँ चाहिए, एक गार्जियन चाहिए, ठीक है। तो वो गार्जियन कोई भी हो सकता है। आजकल को प्रोफेशनल वर्ल्ड में गार्जियन क्या होता है? गाइडेंस हो जाता है, मेंटर्स हो जाते हैं। तो ये सब तमाम प्रकार की चीजें, यू मस्ट बी मेजरेबल इनफ कि व्हाट इज योर एनर्जी एंड व्हाट इज योर रियलिस्टिक एनर्जी, रिसोर्सेस क्या है। अब कोई आदमी बहुत पुअर है, वो सोचेगा मैं अमेरिका में जाके पीएचडी की डिग्री करूंगा, कैसे होगा? तो पहले तो वो गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में जाए, वहाँ अच्छा काम करे, फिर कोई स्कॉलरशिप लेके अमेरिका जाए। तो आपको एक रूट आउट करना पड़ेगा, रियलिस्टिक आपका रिसोर्स क्या है, आपकी एनर्जी क्या है, और मेजर करना, ठीक है। उसके बाद होता है ए, स्मार्ट, ठीक है ना। ए मीन्स व्हाट? दो तरह के लोग हैं, यू फाइंड टू टाइप्स ऑफ लोग। एक बोलेगा कुछ प्रॉब्लम, कोई बॉस डू यू हैव एनी, डू फाइंड एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम सर बनना है। अरे यू आर अंडरस्टैंडिंग और साइकिल स्टैंड, साइकिल स्टैंड, यू नो साइकिल स्टैंड, understand and cycle stand. Understand means understand and cycle stand means what? Once fallen all fallen. साइकिल स्टैंड देखा ना स्कूल कॉलेज में, कभी साइकिल चला है? Yes. लाइन से साइकिल रहता है, एक गिर गया तो सब गिर जाएगा। कोई जानबूझ के, जो जब छुट्टी होता है जानबूझ के कोई लड़का लड़की एक साथ देख के उसको क्या करेगा? गिरा देगा, अपना तो निकाल देगा, दूसरा कब? ऐसा होता होगा, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा।
तो साइकिल स्टेट, पहले इंडियन क्रिकेट टीम क्या था पहले, इट वाज जस्ट लाइक ए साइकिल स्टैंड, एक विकेट गिरा सारा विकेट, वंस फॉलन ऑल फॉलन, तो नेवर बिकम द एग्जांपल ऑफ साइकिल स्टैंड। अचीवमेंट ओरिएंटेशन होना चाहिए, जो मैं तो कुछ करूंगा, ये नहीं जो होगा 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 होगा, ऐसा कुछ नहीं करना। अचीवमेंट ओरिएंटेशन, सो मस्ट बी स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अचीवमेंट ओरिएंटेशन एनी टाइम यू मस्ट हैव। एंड द नेक्स्ट लेटर इज व्हाट? आर। आर मीन्स इवन आफ्टर दैट यू मस्ट बी रियलिस्टिक एनफ। अपने आप को कंपेयर करते रहो। मैंने क्या बोला कि यू मस्ट प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बट देन यू आल्सो प्रिपेयर फॉर योर करियर गोल, अदर गोल्स, उसको भी देते रहो, देखते रहो, रियलिस्टिक करते रहो, ठीक है? बैठ मत जाओ, हो सकता ना हो, कंपटीशन इज कंपटीशन, रियलिस्टिक एनफ। एंड देन द लास्ट लेटर इज व्हाट? टी। टी मींस टाइम बाउंड। अभी हम यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे, अभी मैडम ने क्या बोला कि अगर मुझे भी टाइम मिलता तो मैं भी कर लेती, क्या बोला आपके सामने बोला ना? क्यों? क्योंकि अभी तो उनके पास सब कुछ है, ठीक है? सूनर और लेटर सी बिकम द इवैल्यूएटर ऑफ यूपीएससी, बट देन व्हाट? अभी उनके पास में क्या नहीं है? टी नहीं, टाइम फैक्टर नहीं है, वो तो चला गया। तो टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक साल में करेंगे, और जब आप एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करोगे तो भी ऐसे करो। तो मैंने आपको क्या समझाया? सोशियोलॉजी इज स्कोरिंग, सोशियोलॉजी इज सिंपल बिकॉज इट इजी टू अंडरस्टैंड। जो मैं आपको बता रहा था, थिंकर्स का बात बता रहा था, वो मैंने कहा कि पूरे सोशियोलॉजी को वी बेसिकली डिवाइड इनटू 2 पॉइंट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। एंड द होल थिंग इज, इफ यू गो फॉर द माइक्रो एंड मैक्रो, व्हाई माइक्रो एंड मैक्रो, आई एम टेलिंग यू that if you categorize the thinkers, phenomenology is what? Micro or macro? It is more micro than macro. So you have a GH meet, you can put GH meet in what category? Micro category. And when you're talking about that Marx, we're talking about their king, the whole society, Parsons, whole society, you can put it very easily in the category of what? Macro. And then as far as the perspectives, ठीक है ना? Perspectives, we have 2 types of perspectives. एक बोलता है तोड़ दो, एक बोलता है जोड़ दो, ठीक है? एक को लगता है दुनिया में क्या है, हमेशा प्रॉब्लम है, the whole world is very critical, ठीक है? तो आप जानते ही हो, तो फंक्शनलिस्ट बोलता है कि कॉपरेशन सब कुछ क्या स्यू जेनरस है, कॉपरेशन। कोई कहता है जला दो मिटा दो, खत्म करो। मार्क्सिस्ट जो है, तो मार्क्सिज्म इज फुल ऑफ वर्ड, वो कहता है कॉन्फ्लिक्ट, और जितने लोग हैं वो कहते हैं फंक्शनलिस्ट। एंड इफ यू सी द क्रोनोलॉजी, वेरी सिंपल, मार्क्सिज्म, डर्कीमकाइज्म, एंड व्हेन कम टू द पॉइंट ऑफ पार्सन्स, पार्सन्स का क्या ब्यूटी है? He was a paper tiger. He had never gone to the field. But then he synchronized everything, because earlier he was biologist, then economist, and finally become sociologist. ठीक है? तो if you see the, वो कहता है कि we are making a world, because उसका बहुत प्रॉब्लम था, he was from America. और अमेरिका की जो यूथ थे 60s and 70s में, they are openly opposing the whole American system because of the Vietnam War. Now it was a great challenge for the functionalist. Is functionalism has any reality or not? So Parsons was a big, the reply. When Parsons made it clear, he synchronized everything in his theory. वो कहता मेरे पास में एक ऐसा रेस्टोरेंट है where you have South Indian foods, North Indian foods, Mughlai foods, everything. Sir, ठीक है? is he an armchair sociologist? Yes. ठीक है? तो पार्सन्स के ऊपर में टैग है. If you go to this book, many of good books, तो उसमें अगर आप जाएंगे तो आपको बोलेगा वो पेपर टैग है.
और वैसे भी तो ये पूरा का पूरा जो काम करने सी राइट मीन्स वगैरह ये लोग बहुत सारा काम किए, लेकिन हमको करेगा वी डोंट हैव टू गो फॉर द नोइंग वर्ड, कम टू द पॉइंट पार्सन्स। तो व्हेन यू आर राइटिंग पार्सन्स, और क्या है जनरल स्टडीज पेपर 1, व्हाई इट इज टेक्निकल टेक्निक वाइज, जनरल स्टडीज पेपर 1 you have out of 8 questions you have almost 3 to 4 questions on what? Sociological thinkers, and it's just like mathematics examination. वो पूछेगा क्या है आइडियल टाइप क्या है, ठीक है, वो पूछेगा आइडियल टाइप क्या है, कोई पूछ देगा डकिंग से रिलेटेड, डकिंग को व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सब लोग जानते हैं सुसाइड इंपॉर्टेंट है, फिर 20 मार्क्स ये लगे सुसाइड, कितना टाइम लगेगा राइट करने में आपको, आइडियल टाइप में कितना टाइम लगेगा, सिंपल आइडियल टाइप, इट इज यो क्या है, इट इज नॉट एवरेज, इट इज नॉट आइडियल। हमारे लिए हमेशा बना रहे, क्योंकि ये जो एरिया है कोरापुट, यहाँ पर मतलब बच्चे कितना ड्रीम्स लेकर आते हैं, और अगर यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आपने जैसे आज समझाया, मुझे नहीं लगता और कोई ऐसे समझा सकते हैं, और आपने बहुत माइक्रो लेवल से बच्चों के साथ शेयर किया सब चीज़ों को, जैसे कि हमारा थ्योरीज है, जेंडर है, वो सब पर्सपेक्टिव आपने इतने अच्छी तरह से समझाया, जैसे कि हम कोई मतलब एक टीचर जैसे किसी को इतना भी नहीं समझा सकते जैसे आपने समझाया। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हम सब, और आपका जो ये लेक्चर रहा, इसलिए हमने बहुत सारे लोगों को बुलाया था इस लेक्चर में, और हम बहुत धन्यवाद अर्पण करना चाहते हैं हमारे जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का, देवा पीएचडी कैंडिडेट, वो आए हैं हमारा प्रोग्राम को देखने के लिए, और सब ये जो हमारा वनडे लेक्चर है ये अधूरा रह जाता अगर बच्चे नहीं होते, बच्चों का सपोर्ट नहीं होता। तो हमारे सब बच्चों को हम बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आए सब लोग, एंड they have given their like time, effort and hard work also, क्योंकि इसको सजाने का काम सब कुछ सर बच्चों का बहुत इसमें रोल है। थैंक यू सो मच, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट